पेंशनर्स क्या है? जब 2004 में एनपीएस आया था, हम लोग आवाज उठाया था, हमारे बीच में भी उसको डिवीजन हुआ था, हमको ओपीएस मिल रहा है। Comments, one announcement. Any chief executive who has not signed the memorandum copies, please come here because we cannot identify. The benefit of the old pensioners. Okay. Actually, this bill is violation of the Article 14 of the Constitution. So would you like to go in court because the court Yes. will direct Yes. that its pension is the fundamental right? Yes, Definitely we are approaching the Supreme Court through a prominent lawyer, Sri Vikas Singh, and that case is being filed within 1 or 2 days. Okay. And also the government during the election of the New Delhi declared that 8th pay commission will be constituted. Okay. That was in January. Now 10 months is over. Still they have constituted the Central Pay Commission, and also terms of reference has been declared. Okay. And this Pay Commission only after getting the recommendation only they can implement. It is due from 1/1/2026. Unfortunately, it has not yet been constituted. That means the government is not at all interested. They were cheating the employees and the pensioners only to get the vote in Delhi and maybe in the Bihar also. They are misguiding. We are misguiding the people. We are misguiding the pensioners. They are misguiding the employees. Everybody is being misguided and targeted to take away the benefits. That is the main problem. And another thing is that BSNL pension division from 1/1/2017 it is due. The government is now telling that some particular organizations have gone to the court, so let the court decide. When the court is going to decide it, and even if the court decides whether the government will implement it through this finance bill 2025, they can nullify any court order that they have already argued in the court. So there is no meaning in waiting for the court order. Okay. So we want our pension division to be settled out of court. A reasonable settlement out of court. And bank pensioners, LIC pensioners, they never have any revision at all. These are all the core issues. Even updation is pending. Yes, pending. Updation is also pending in the banking sector. Banking sector, there no once the pension is given, there is no revision at all. No revision at all. The pay is being revised, but the pension is not revised. That is लगातार ये जो बात उठ रही है कि पूरे देश से अलग अलग संगठन के लोग आज खड़े हो गए हैं, सबके साथ ही अन्याय हो रहा है। बीएसएनएल की बात की, बैंकिंग सेक्टर की बात करो, इंडस्ट्रीज की बात करो, सब जगह परेशानी है। और गवर्नमेंट सेक्टर की तो बात है ही है। इंडस्ट्रीज की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईपीएस 95 के लोग भी परेशान हैं, वो भी शायद आपके साथ आगे जुड़ जाएंगे। ये जो इतनी परेशानी हो रही है, पेंशन सरकार एक लायबिलिटी की तरह ले रही है, वो कभी ये नहीं कह रही है कि भाई पेंशन उसका जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, बोलने का तो भाई नहीं, बात आप लोग को भी मालूम है क्या चल रहा है देश में। सिर्फ पेंशनर नहीं, हमारा हर ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर में अटैक है, कॉमन पीपल का ऊपर में अटैक है, हमारा वर्किंग क्लास का जो है, हमारा पार्ट टाइम वर्कर हो, कैजुअल लेबर हो, सबका ऊपर में अटैक है। लेकिन लास्टली जो किया है हमारा मार्च महीना में हमारा पार्लियामेंट में झूठ बोल के हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट इटसेल्फ दे टेलिंग लायर, दे टेलिंग लाई, कैसा कि बोल रहा है इसमें हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन बाद में विदिन ए वीक दे मेक इट ए एक्ट एंड प्लेस बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट। दैट मीन्स दे प्रूव दैट एक्ट विल empower the central government to deny all our issues, all our pension divisions, and in the future days they will create distinction among the pensioners. Not only that, अभी जो पेंशनर्स का जो हालत है, अभी जो मिल रहा है, हमारा जो पेंशन रूल है उसको इनएक्टिव कर दिया है। जो पेंशन रूल 1972, 2021 ऑल पेंशन इनएक्टिव। उसी में ये भी प्रोविजन है, वी कैन नॉट मूव टू द कोर्ट एंड court judgment also will not be effective, and government will decide every judgment, they are not supposed to implement the court judgment also. That is a dangerous attack. So today we are meeting here at Dharna at Delhi
we can arrange thousand pensioners here. But Delhi state government not permitting us to come here, so restricted here. So we given call throughout the country. Today itself, in every district of the country, in every state, they are organizing dharna and opposing this system. I don't देश think. में हो रहा है। Yes, सारे देश में चल रहा है। अच्छा, कौन कौन सी मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पार्ट कर रही हैं? नहीं, इसमें हमारा जितना सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स है, कोई इसका बाहर में नहीं है। अच्छा, सब आ गए। सब आ गया है। और सबके बड़ा बात किया, इस बीच में हम लोग लास्ट 2 महीना से पेज प्रोग्राम ह्यूमन साइन किया है, हम लोग धरना दिया है, हम लोग स्टेट लेवल कन्वेंशन किया है। उसके बाद हम मोर देन 80 MPs we met and given some memorandum to them उस so स्तर that पे आप लोग काम कर रहे हैं पूरी तरीके से। पूरी तरह उसमें एक बार नहीं है क्या बीजेपी का एमपी हो, हाँ। हमारा जो कांग्रेस का एमपी हो, सबके पास समाजवादी जा रहे सबका बस गया। किस लिए? बिकॉज we are the pensioners, we are not supposed to concentrate only in one section. Every pensioners का every MP का पास हम लोग गया है। आज भी इधर हमारा मीटिंग में MP आया है, हाँ। हमारा स्टेट CITU का लीडर तपन सिंह है, हमारा AITUC का लीडर है कमलजीत कौर है। All trade unions also are going to unite with us also in a future program. So today is our. Are you ready for a big fight? Yes, definitely. You can imagine throughout every state we met with the governor and requested submit him the memorandum to forward it to the government. क्या मतलब है इससे? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को मेमोरेंडम देंगे इसलिए हमारा डिमांड फुलफिल हो जाएगा, ऐसा उम्मीद नहीं है हमारा। लेकिन जो फॉर्मेलिटी, जो डेकोरम, जो हम लोग का जो मेंबर्स सबको मानना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो इस फेस प्रोग्राम का लास्ट प्रोग्राम टुडे है, इसका बाद में भी नया वाला प्रोग्राम आ जाएगा। हमारा कोर्ट केस में भी फाइट हो जाएगा, लेकिन बात हमारा सोचना पड़ेगा क्या ये धरना से, मेमोरेंडम से और हमारा प्रोग्राम से क्या आप जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये मानने वाला है क्या? आप लोग को थोड़ा ध्यान देने पड़ेगा। व्हाई दिस अटैक? Whether this attack only to our pensioners or some other sector also? What is the situation of the country? Why this government came to attack the pensioners? They are attacking the normal all sectoral employees, common people. किसी को छोड़ा नहीं है और अपना गद्दी बचाने के लिए वो किसी की अनुष्ठान, जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, पार्लियामेंट के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, हमारा जो जुडिशियरी है, everywhere attack is there. They are not bothering to obey the Supreme Court judge. What is the serious situation you are noticing? Is it a democratic country? Is it our constitution provide such type of facilities? सुप्रीम कोर्ट का अंदर में सुप्रीम कोर्ट का जज को जूता मारना, ये क्या तरीका है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट? क्या शो कर रहा है? हमारा बात से चलो, नहीं तो वहां पे तुमको नहीं रखेंगे। इलेक्शन कमीशन को बोल रहे हैं हमारा बात से चलो, हमारा गद्दी बसाना है, वोट हमको मिलना है, चोरी करो जो भी करो करो, लेकिन हमको गद्दी रखना है। और एम्प्लॉइज के अंदर में कोई भी ऊपर में आने की कोशिश करेगा उसको तोड़ो, ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करो। पेंशनर्स क्या है? जब 2004 में एनपीएस आया था, हम लोग आवाज उठाया था, हमारे बीच में भी उसको डिवीजन हुआ था, हमको ओपीएस मिल रहा है, व्हाई यू शुड आर्टर फॉर दिस? क्या वो अभी क्या हुआ है? सरकार हमारा अलग कर दिया है ओपीएस और एनपीएस को। इसका बाद क्या है? आवाज उठाया हम लोग फाइट किया, इधर भी धरना किया था, यूपीएस लेके आया है, क्या फायदा हुआ है? अभी हमारा जो ऊपर में अटैक आया है, पुराना पेंशन को खत्म करो, नया जो रिटायरमेंट होने वाला है उसको थोड़ा कुछ दो, उसका बाद वो डिवीजन होने का बाद डिस्कशन करने का बाद उसको भी खत्म करेगा, पेंशन नहीं रहेगा। सिर्फ धरना और आवाज उठाने से, कोर्ट में जाने से, कोर्ट में मत तो हमारा जजमेंट हमारा फेवर में आएगा, आने के बाद भी सरकार बनने के लिए तैयार है। शर्म की बात है, मार्च महीना में वो जनवरी महीना में अनाउंस किया बिफोर दिल्ली इलेक्शन टू गेट द वोट ओनली, 8 पे कमीशन बनेगा और 2026 का जनवरी से इम्प्लीमेंट होगा। आज अभी अक्टूबर है, अभी तक 8 पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है। We condemn this attitude of the government. Why this is going on? Why bluffing in the parliament itself? अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है।
हमारा दिल में शक है whether 8 पे कमीशन will be constituted or not, और अगर कॉन्स्टिट्यूट होगा भी कौन सा स्टाइल से होगा, पेंशनर्स को उसका अंदर में रखेगा कि नहीं रखेगा, और उसमें जो रिकमेंडेशन आएगा उसको भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो उसके लिए हमारा के पास क्या क्या है, हम स्ट्रीट में फाइट करेंगे, लीगल कोर्ट में फाइट करेंगे, उसके बावजूद भी एक फाइट है। वी आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, वी विल कास्ट आवर वोट। जो हमारे को तोड़ेंगे, जो हमारा पेंशन को छीन के ले जाएंगे, उसको हम वोट देने के लिए तैयार है क्या? हम टीवी में देखेंगे और प्यार हो जाता है, ये हमारा सरकार है। कोई हमारा सरकार नहीं है। जो हमारे ऊपर में अटैक आ रहा है, हमारा पेंशन कार्टेल कर रहा है, उसको हम देख के रखेंगे। अगला भी इलेक्शन होने वाला है, 3, 4, 5 स्टेट असेंबली इलेक्शन इज देयर, certainly that deflection will be there. I feel so. तो कॉमरेड हमारा अगला वाला जो प्रोग्राम होगा उसमें भी हमको इससे जोरदार से करना पड़ेगा। कॉमरेड दिल्ली में हम लोग इससे भी बहुत ज्यादा आदमी इकट्ठा कर सकता था इसी उम्र में भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है, दिल्ली में जो सरकार है इसका पहले वाला हमारे धरना में भी हम लोग को बैठने नहीं दिया। इस बार भी हर टाइम में टेलीफोनिकली दे आर restricting number, you don't come more than 300, more than 500, more than 600. How this is going on? Is it a democratic country? हम सीनियर सिटीजन है, इधर बोलने का भी हमको मुंह बंद है, इसलिए हमारा आवाज उठाया है। सारे इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में आज सेम प्रोग्राम हो रहा है, हमको रोकने नहीं सकेंगे। इसलिए हम लोग इससे भी ज्यादा तरीके से कैसे आगे बढ़ सकता है। अभी तक सुहा हुआ है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन, हम अभी रास्ता पे है। Why they are not coming to join with us? Why you should invite them? They should come forward. We are always ready to committed to join with them also in every struggle of the Confederation of Central Government Employees and other sector, our common struggle. We are joining with them, so they should also come with us. In a united fight, we can defeat this policy of the government. That means defeat means any government comes, if his policy goes against us, we will fight certainly. So I will not talk much more. हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक ही अपील है आप लोग का सामने में, आप लोग सिर्फ हमारा मांग क्या है, 8 पे कमीशन दे दिया, डीआर दे दिया, खुश है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं दे रहा है। There is a certain pressure everywhere. Report is going on to the central government. They are not declaring. So मैं सोचता हूँ अगला दिन में we can overcome it. So with this word, I once again on behalf of all India Postal and Pension Association as well as NCCPA, because it is a historical day for this day, because earlier occasion we organized Dharna and all these programs here Parliament March under the banner of NCCPA. Now we form the forum of Civil Pension Association, wherein not only NCCPA, other affiliates, all pension associations, we are trying to unite them, and we will fight it in the future days along with other sector serving employees also. We are ready to fight. With these words, I once again congratulate all of you. Thank you, comrade.